सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। उत्तेजना के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा। In Corinthians chapter 6 verse 14, here it says, God raised the Lord and will also raise us up by his power. We believe our God is a living God. यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं. We all believe that. And for that we are celebrating it today. आज वो दिन है. Today is Easter. So I wish each and everyone a happy resurrected day. And before we move to our praises, let us all stand together and lift his name. क्यों ना एक साथ खड़े होकर क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें. Why don't we all close our eyes and believe that our living God is right now here with us. He's the one who is answering our prayer. Why don't we all close our eyes? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this time, Master. Lord, you came, you lived, you died, you rose again, Lord. You have taken victory over everything, O Master. And we thank you for that, O Lord God. Thank you for the amazing things that you have done in our life and you're still doing, O Lord. We believe that you are a living Lord, Master. And it's our privilege, O Lord God, that we got over here to lift your name, O Master. Enable us that today, O Lord God, let us give our best offering of praise and worship to you alone, O Lord God. हमें मदद कर प्रभु जी, हम सभी को तू मदद कर कि हमारा उत्तम भेंट प्रभु जी आपके लिए हम दे ताकि आप प्रसन्न हो जाए प्रभु जी. That's our prayer today, O Master. Enable us to give our best to you today, Lord God. Enable us that we come out of all the anxiety of all the problems, O Lord God, and only remember you, O Master, for you have always been awesome and you are awesome, O Lord God, and truly there is no one like you, O Lord. Thank you once again for this time, O Lord God. You are alive, God, and we believe in you, O Lord God, and we want to lift your name. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. फिर से जय मसीह. जय मसीह. Why don't we sing this song, Alive, Alive, Alive Forevermore? वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा. वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है. हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा. हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. वो जीवित है. वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा. वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है. हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा. हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है. वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. एक साथ, वो जिंदा है, एवरीवन. वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा
जिंदा है, वो 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 जिंदा है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी, सीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, हर जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आके थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए, गाऊंगा मैं तेरे ही जय, जो तूने चुराया मुझे है। ओ गाऊंगा मैं तेरे ही जय। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए, आनंद है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए, आनंद है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए, कि हम तालियों का बेटे हमारे महान परमेश्वर को। So Lord Jesus, thank you so much, O Lord God. You are a resurrected Christ, O Lord God, and we believe in you, O Lord. We want to lift your name. You are Master, O Master. Thank you, O Lord. Thank you, O Lord. For as by man came death, by a man has come resurrection of a death. For
as in Adam all died, so in Christ all shall live. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिले जाएंगे। We died because of our own transgression and sin, but because of the Christ we are alive, we are new. And we thank him and we give him all the glory because he is the one who had conquered over sin and he has conquered over death. So why don't we all sing this song together? Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus has conquered sin and death. Jesus has conquered sin and death. Jesus has conquered. Jesus has conquered. Jesus has conquered sin and death. Jesus, the Lord of heaven and earth. Jesus, the Lord of heaven and earth. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of heaven and earth. Jesus is coming back again. Jesus is coming back again. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming back again. Gaओ hallelujah प्रभु को. गाओ hallelujah प्रभु को. गाओ hallelujah. गाओ hallelujah. गाओ hallelujah प्रभु को. मृत्यु पाप पर विजय पाया है. मृत्यु पाप विजय पाया है. विजय पाया है. विजय पाया है. मृत्यु पाप विजय पाया है. यीशु धरती स्वर्ग का राजा है. यीशु धरती स्वर्ग का राजा है. यीशु राजा है. यीशु राजा है. यीशु धरती स्वर्ग का राजा है. यीशु वापस आने वाला है. यीशु वापस आने वाला है. यीशु आएगा. यीशु आएगा. यीशु वापस आने वाला है. यीशु वापस आने वाला है.
यीशु वापस आने वाला है। क्यों ना दिल से गाए हम, यीशु वापस आने वाला है। यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु वापस आने वाला है। We believe in you, O Lord. You are soon to come, O Lord. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he died, yet he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? Now that is a question from God to us. We believe that He is a living God. हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है. And we have come here to lift your name, O Lord, because we believe in you and we know someday we would be there with you, O Lord. We want to worship you, O Lord God. We want to worship you in spirit and in truth. महिमा तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा तेरी, महिमा हो तेरी। स्वर्ग से आया तू, मुझे बचाया तू। स्वर्ग से आया तू, मुझे बचाया तूने। हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, मेरे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, मेरे यीशु। सजदा तेरी, सजदा हो तेरे, सजदा तेरी, सजदा हो तेरी। स्वर्ग से आया तू, मुझे बचाया तू। स्वर्ग से आया तू, मुझे बचाया तूने। हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, मेरे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, तू आया प्रभु। हे यीशु, मेरे
शब्दों के द्वारा उस महान परमेश्वर की आराधना करें. Thank you, Lord. Let's not be quiet. Let's lift His name on high. Let's lift our hand and praise His holy name. For all that you did, Lord, there is nothing that we could give you in return. Nothing that could be compared, O Lord God, for everything that you have done. All that we could say is thank you, Lord. All that we could say is thank you.
सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। Yes, O Lord. Thank you so much for everything, O Lord. It's truly a privilege now to lift your name. And it would rather be more joy to see you once again, Lord, when you come back again in your glorious form. Whenever we call, you are there to answer, O Lord God. जब हम पुकारते हैं प्रभु जी, तू हमेशा हमारा प्रार्थना को ना ही सिर्फ सुनता है प्रभु जी, पर तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है. We thank you for all that you are, O Lord God. We thank you for everything that you are. We give the further service in your hand, O Lord God. Enable us to learn something new and different today, this morning, O Lord God. Thank you so much once again for everything. Ask all this in your powerful name, Lord Jesus Christ. Amen. फिर से सभी को जय मसीह. जय मसीह। ये भेंट का समय है. क्यों ना हम परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम भेंट दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है. तो क्यों ना हम एक गीत गाए एक साथ. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, दिया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब से आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं आज का ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया। हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं, जैसे हम शुरुआत में हम आपका वचन को हम सुने हैं कि यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है, और उसी जीवित प्रभु यीशु को हमने आराधना स्तुति की है, आपका नाम को हम
ऊंचा उठाए है। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु। और आपने हमें आज सुबह का वक्त हमें आपकी आराधना करने के लिए हमें अगुवाई किया। हम सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भेंट के लिए, प्रार्थना करते हैं जो आपके लोगों ने जो आनंद से खुशी से विश्वास योग्य होके इस भेंट को दिया है, इस भेंट को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। और इस भेंट में प्रभु हम आपका आशीष को मांगते हैं। इस भेंट को आपके राज के लिए उपयोग होने के लिए, इस भेंट के द्वारा प्रभु आपका महिमा होने के लिए आप मदद करें। और हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट में प्रभु हम आपका आशीष मांगते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु आपने हमें कई संकटों से आपने हमें बचाया है। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जैसे हम भजन संहिता का 23 में हम पढ़ते हैं, संगीतकार कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से मैं जाऊं तो भी मैं कुछ हानि से ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु तो हमारे साथ रहता है। और आपने प्रभु इस संकट के घड़ी प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु। और आपने हर पल हर समय हम सभी कलीसिया के लोगों को आपने संभाला है प्रभु। हम धन्यवाद कहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं प्रभु कई बीमारियां बढ़ती जा रही है, हम प्रार्थना करते हैं इसको रोकथाम आप करें प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं ये जो बीमारी है कोविड-19 का प्रभु इससे आप दूर करें। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी लोगों को रक्षा करें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से प्रभु हम आगे जैसे हम आपके दास के द्वारा हम आपका वचन को सुनने वाले, हमारे आत्मिक आँखों को, कानों को, हृदय को, मन को खोल दे। जो भी आपका वचन जो हमें सुनने वाले हैं प्रभु उसे ग्रहण करने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए मदद कर। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमें आपने चलाया है प्रभु और आगे भी आपके हाथ में देते ले प्रभु। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हमसे प्रेम करने वाले हमारा यीशु मसीह के मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord जय मसीह and happy Easter to all of you. और सभी को जो पुनरुत्थान की शुभेच्छाएं। And it's such a joy for us to celebrate a great event. We call it Easter. और हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि हम ये मुख्य घटना को मना रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। Our worship team has already helped us to feel the joy of Easter. और स्तुति आराधना के दल ने हमें बहुत मदद किया है कि हम जो ईस्टर है उसका हम आनंद मना सके। And we praise God for that. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके लिए। And today Christian community world over celebrates Easter. और जो क्रिस्ती समुदाय है पूरे संसार भर में इस दिन को मनाते हैं। Easter, the single most great miracle next only to the incarnation of Son of God. और यीशु मसीह के देहधारी रूप में आने से जो बढ़कर ये जो हम मनाते हैं ईस्टर, Both are equal. दोनों भी सामान्य है। As a matter of fact, और वास्तविकता में I always reminded you कि मैंने हमेशा आपको ये बात याद दिलाई है that Christian faith, our faith is compared to a three-legged table. कि हमारा जो विश्वास है उसे तीन जो एक टेबल होता है जिसके तीन पैर होते हैं। You remove one leg, a table falls. और अगर आप उसका एक पैर को निकाल दोगे तो वो टेबल जो है वो गिर जाएगा। They are the pillars of Christian faith. और वो क्रिस्ती विश्वास का जो पिलर उसे कहा जाता है। Three pillars of our faith. जो तीन पिलर है हमारे विश्वास के। Incarnation celebrated as Christmas. जो देहधारी रूप में यीशु मसीह का आना जिसे हम नाताल करके मनाते हैं। Crucifixion celebrated as Good Friday. और जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया जिसे हम गुड फ्राइडे करके मनाते And हैं। resurrection of our Lord Jesus Christ is celebrated as Easter. और हमारे यीशु मसीह वो जी उठे उसे हम ईस्टर करके मनाते हैं। I have been giving you Easter sermons for the last 30 years. और मैं आपको जो ईस्टर का संदेश है वो पिछले 30 सालों से देते हुए आया हूँ। And therefore there is hardly any concept, any idea is left for me to cover on Easter as the Easter message. इसलिए कि कुछ ऐसी कुछ बातें ही रह गई है जो बाकी है देने की, या फिर मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। Today I want to highlight 7 salient aspects of
resurrection, that is, Jesus rose again back into life. और मैं आपको आज कुछ ऐसी 7 प्रमुख बातें बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किस तरीके से उन्होंने उनका पुनरुत्थान हुआ। Shall we stand up and pray? क्यों ना हम खड़े होकर प्रार्थना करें। Gracious and loving Heavenly Father, we praise you and thank you for you have given us a great joy of celebrating the resurrection of your Son. प्रिय अनुग्रही पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत बड़ा आनंद दिया है कि हम आपके बेटे का पुनरुत्थान को मना सके। We are not celebrating as a part of our Christian tradition, और हम उसे हमारे क्रिस्ती जो चलन है उस तरीके से हम उसे नहीं but मनाते, with great joy, exuberant and energy, we celebrate this day, Easter. लेकिन हम बहुत ही आनंद के साथ और उत्साह के साथ इस दिन को, ईस्टर को हम मनाते हैं। Because the Lord Jesus has instilled the energy and the power and joy of Easter into our life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो पुनरुत्थान का जो आनंद और जो आनंद है जो वो प्रभु ने हमें दिया है। As we look into few aspects related to the great event of your life that's came back into life. और जैसे हम कुछ बातों को देखेंगे कि किस तरीके से पुनरुत्थान हुआ, May those salient aspects become a challenge to all of us. और वो जो चैलेंज, जो चुनौती के जो 7 चीज़ें हैं, जो प्रमुख चीज़ें हैं, वो हमारे जीवन में चुनौती बिठा रहे हैं। Holy Spirit, you would take this effort to apply to the lives of everyone who is listening to the message. और पवित्र आत्मा आप मदद करें, जो कोई भी ये वचन को सुनेगा आप उसके हृदय में काम करें। In the mighty and ever living Lord of Easter resurrection, we pray in Jesus' name. और सामर्थ्य शक्तिवान हमारे परमेश्वर जो पुनरुत्थान पाए हुए हैं उनके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Yeah, please be seated. आप बैठ जाएं। As I said that I have chosen 7 salient aspects related to resurrection. और जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 7 प्रमुख बातों को चुना है जो पुनरुत्थान से संबंधित है। The first one, और पहला, resurrection of Jesus brings accreditation to the messiahship of Lord Jesus. और जो पुनरुत्थान है वो प्रमुखता को लेकर आता है यीशु मसीह के लिए। Once again I repeat, resurrection of Jesus brings accreditation to the messiahship of Lord Jesus. जो पुनरुत्थान है वो प्रमुखता को लेकर आता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। For centuries the nation of Israel और काफ़ी शताब्दियों से जो इज़राइल का समूह है and Jewish community, religious sect, और जो यहूदी समुदाय है, they were looking forward and waiting for the coming of Messiah. वो रुके हुए थे और वो देख रहे थे जो आने वाला मसीहा है उसके लिए। Because God had revealed this would happen and I would be sending a Messiah. क्योंकि परमेश्वर ने ये बात उन्हें बताई थी कि मैं एक मसीहा को भेजने वाला हूँ। So the whole nation of Israel, they were looking forward for the coming of Messiah. इसलिए जो पूरा इज़राइलियों का जो देश था वो मसीहा का इंतज़ार कर रहा था। And finally God did send his only begotten son as a Messiah to his people. और फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। And John in his gospel he writes that his own did not receive him, they rejected him. और यूहन्ना ने ऐसे लिखा है कि उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसका तिरस्कार किया। Quickly refer to John's gospel chapter 1 verse 10 and 11. और हम यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 10 और 11 पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। So the whole nation was awaiting for Messiah, but when he came, they did not receive him, they did not acknowledge him.
और पूरा संसार मसीहा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब मसीहा आए तब जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया and they rejected him. और उन्होंने उनका तिरस्कार किया। All Jews who became followers of Jesus after this resurrection, और जो यहूदी लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया पुनरुत्थान के बाद। on the day of Pentecost, 3,000 Jews, they were born again. और पेंटिकॉस्ट के दिन में 3,000 जो यहूदी थे उन्होंने नया तरीके से जन्म पाए। They believed in God. They were firm believers in God. उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और उनका विश्वास बहुत मजबूत था। And they had the scripture. They revered their scripture. और उनके पास वचन था और वो वचन पढ़ते थे। And through the scriptures, they knew that God is sending a Messiah to liberate them, give them freedom. और वो वचन के द्वारा उन्हें पता था कि परमेश्वर मसीहा को भेजने वाले हैं जो उन्हें छुटकारा देगा। So when they rejected him, finally he was crucified. और जब उन्होंने यीशु मसीह का तिरस्कार किया और वो क्रूस पर चढ़ाए गए, And after he rose again, और जब वो पुनरुत्थान पाए and then on the day of Pentecost, और पेंटिकॉस्ट के दिन when they realized that they had crucified, nailed their own Messiah, और उन्होंने ये बात को जाना कि उन्होंने अपने खुद के मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया। that was through the preaching, the maiden sermon of Peter. और ये प्रचार के द्वारा आया जो प्रथम प्रचार किया गया पतरस के द्वारा। And they realized that Jesus was a Messiah. और उन्होंने ये बात को जाना कि यीशु मसीह वो मसीहा थे। They didn't have to accept that there is a living God because they already believed. और उनको ये बात स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो वहाँ पर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो ये बात पहले से जानते थे। They were firm believer in Yahweh. और वो बहुत ही दृढ़ विश्वासी थे यहोवा में। They were living, at least trying to live by the word of God, applying that into their lives. और वो कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर का वचन के अनुसार वो अपना जीवन को जिए। Repenting for their sin was already done. और अपने पाप का पश्चाताप करना वो पहले से हो चुका था। We read that John the Baptist had led the whole nation into repentance. और हमने ये पढ़ा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन्होंने पूरे सभी को पश्चाताप में चलाया। And what was more needed? The one thing that they needed. और फिर वहाँ पर ऐसा क्या ज़रूरत था? वहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत थी। They needed to believe that Jesus was the Messiah and we rejected him and they had to repent for that. और उन्हें ये बात को स्वीकार करना था कि यीशु मसीह वो मसीहा थे और वो परमेश्वर के पुत्र थे। वो उन्हें विश्वास करना था और उसके लिए पश्चाताप करना था। Read Acts chapter 2 verses 22 and 2:24. और हम प्रेरितों का 2 का 22 और 24 पढ़ेंगे। Acts chapter 2 verses 22 to 24. प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 22 से 24। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। So Peter makes it very clear. और यहाँ पर पतरस बहुत स्पष्ट रीति से The बताता one है whom you had rejected and got him crucified. कि जिसको तुमने तिरस्कार किया और उसे क्रूस पर चढ़ाया, God has raised him from the dead. कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जीवित किया। So 3,000 people believed and accepted Jesus. They were born again. और 3,000 लोग ने विश्वास किया और उन्होंने नए सिरे से जन्म पाए। Because the resurrection of Lord Jesus gave
them the proof that Jesus was the Messiah. क्योंकि जो पुनरुत्थान था वो उनके लिए एक कारण बना कि यीशु मसीह ही मसीहा है। So resurrection gave accreditation to the Lord's Messiahship. तो यीशु मसीह जो पुनरुत्थान है वो यीशु मसीह के लिए सबूत का काम किया। The second point, और दूसरी बात, the resurrection of Jesus sets him apart from all religious leaders. जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है वो यीशु मसीह को बाकी सारे जो रिलीजियस जो अगुवे रहते हैं उनसे वो अलग करता है। And he was unique in that sense. और उन चीज़ों में वो बहुत अनोखे थे। Even in our own land, और हमारे खुद के भूमि में there have been great leaders, हम बहुत बड़े बड़े अगुवे निकले हैं and they have started their own religious sects. और उन लोगों ने अपने ही धर्म का जो उन्होंने बनाना शुरू किया है। Some were the facts, others are just a belief. और कुछ सच्चाई है और बाकी चीज़ें उन्होंने ऐसी ही कही है। But even if it was not proved that these deities actually lived, और वो उसका सबूत नहीं दे पाए कि ये जो उनके जो भगवान थे या जो मूर्तियाँ थी वो सच में थी। even according to their own mythology, और उनके ही अपने विचारों के द्वारा भी all their leaders, they died and remained dead. उनके सारे अगवे वो मर गए और वो मरे ही रह गए। Even Muhammad Paigamba, whom his followers make him so great, और जो मोहम्मद पैगंबर है जो उनके जो पीछे चलते हैं उन्होंने उन्हें बहुत महान बनाया है। and those followers, even they accept that he died and remained dead. और जो उनके पीछे चलने वाले लोग थे उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि वो मर चुके हैं और वो मरे ही रह गए। And so every religious leader of all religions, or as they were considered to be divine, they died and they remained dead. और जो सारे धर्म के अगुवे थे वो सारे मर गए और वो मरे ही रह गए। And therefore they are all dead leaders. इसलिए वो सारे मरे हुए अगुवे हैं। Jesus Christ alone, having died on the cross, he was laid in the tomb, and Roman authorities had sealed that tomb. और यीशु मसीह जब वो मृत्यु पाए तो उन्हें वो कब्र में रखा गया और जो रोमियो के अधिकारी थे उन्होंने उस कब्र को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। And the Romans had kept the guard to watch over. और उन्होंने वहाँ पर सिपाहियों को तैनात किया था कि वो उसकी देखभाल कर सके। But Jesus broke open the sealed tomb and he came out of it. और यीशु मसीह ने उन सारी चीज़ों को तोड़कर वो उस कब्र से बाहर निकले। And even today, after 2000 years back, we can find the empty tomb where Jesus was laid. और आज भी 2000 साल के बाद हम उस जगह में देख सकते हैं कि वहाँ पर खाली कब्र है। Right after the Sabbath on the first morning, that Sunday morning, और साबत के दिन के बाद जो रविवार की सुबह, we consider that as the Easter Sunday. और जिसे हम ईस्टर संडे ऐसा कहते The हैं, first Easter Sunday. पहला ईस्टर संडे। The ladies who had followed him very closely, और जो वहाँ की स्त्रियाँ थी जिन्होंने यीशु मसीह को बहुत करीब से उनके पीछे वो चले थे, they visited the tomb in early morning. और वो उस कब्र के पास वो सुबह सुबह गए। They took the trouble only to embalm the dead body. और उन्होंने वो तकलीफ को उठाया सिर्फ वो शव को लेप लगाने के लिए। And there the angels met them. और वहाँ पर स्वर्गदूत की मुलाकात उनसे हुई। They asked this question to those ladies. और उन्होंने ये प्रश्न पूछा, Why do you seek the living among the dead? कि तुम जीवित को मृत्यु में क्यों खोजते हो? He is not here. वो यहाँ पर नहीं है, He is risen. वो जीवित है। Let us look into Luke chapter 24, the passage 1 to 8. और हम लूका का 24 अध्याय वचन 1 से 8 तक पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्हें तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से
भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष वहाँ पर वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुख झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उनकी बातें उनको स्मरण आई। We also see a parallel between what we call Christmas and Easter. और हम क्रिसमस और ईस्टर के बीच में ये जुड़ाव को देखते हैं। When the Son of God was incarnated, जब यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र वो देहधारी रूप में it आए, was the angels who gave that news to the shepherds first. और स्वर्गदूतों ने ये खबर वो चरवाहों को पहला दिया। And when the Son of God came back into life, he was raised into life. और जब यीशु मसीह वो पुनरुत्थान पाए, वो फिर से जीवित हुए, The message of resurrection was given by angels to a lady. और तब स्वर्गदूतों ने ये समाचार स्त्रियों को दिया। The message is he is not dead. He don't search him among the dead. He is a living savior. और उन्होंने ऐसे कहा कि वो मरा नहीं है, उसे मृत्युओं में मत ढूंढो, वो जीवित है, वो जीवित तुम्हारा उद्धार करता है, He is risen. वो जीवित है। Jesus is the only savior. Not only he died for our sins, but he also rose again and he lives forevermore. और यीशु मसीह वो एक ही उद्धार करता है जो मृत्यु में से वो जीवित हुए और वो जीवन में है। So he is the only living savior for the world. और वो सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो जीवित है। And thirdly, तीसरी बात, our salvation was accomplished with the resurrection of Jesus Christ. और हमारा जो उद्धार है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मृत्यु पाए what did he achieve there? तो वहाँ पर उन्होंने क्या प्राप्त किया? He paid for our sins. उन्होंने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया He paid the penalty for the sins for everyone who would believe in him. और उन्होंने हमारे दंड को चुकाया। It was through his resurrection he offers eternal life to everyone who comes to him. और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह जो भी उनके पास आते हैं उनको वो नया जीवन देते The हैं। forgiveness of sin is one part. जो पापों की क्षमा वो एक भाग है। We just don't stay there, would only believe that Jesus died for me. और हम सिर्फ उसी पर ही नहीं रुकते कि यीशु मसीह मेरे लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया। Yes, but through his death he has forgiven all our sins. Our penalty of all our sins have been paid. और उनके मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का दंड जो था वो उन्होंने भर दिया। But the salvation offers eternal life. लेकिन उद्धार हमारे लिए वो नए जन्म को लेकर It आता is है। through his resurrection Jesus offers eternal life to all those who come to him. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता Peter है। in his first letter to the churches और पतरस उसके पहले पत्र में made it very clear that we are saved through his resurrection. और उन्होंने बहुत स्पष्ट रीति से बताया कि उनके पुनरुत्थान के द्वारा हम बचाए गए हैं। 1 Peter chapter 3 verse 21. पहला पतरस 3 अध्याय वचन 21, उसी पानी की दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। So through incarnation, when the Son of God
came in the flesh, और जब पुनरुत्थान के द्वारा जब यीशु जो परमेश्वर के पुत्र है वो देहधारी रूप में आए he prepared the way for our salvation, और उन्होंने मार्ग को तैयार किया उद्धार के, and he prepared himself to be a lamb of sacrifice. और उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि वो मेमना बने बलि के लिए। And the crucifixion of Jesus, the death of Jesus on the cross, earned our pardon. और यीशु मसीह का जो मृत्यु था क्रूस पर वो हमारे लिए माफ़ी को लेकर आया, And it is the resurrection of Jesus gives us eternal life. और वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है जो हमें नया जीवन देता है। And therefore, the birth of Jesus, the death of Jesus, and resurrection of Jesus, all three are very important pillars of our faith. इसलिए यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का फिर से जी उठना, ये तीन हमारे लिए प्रमुख चीज़ें ठहरती है। Therefore, resurrection of Jesus Christ was essential for God's plan for our salvation. इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो परमेश्वर की योजना का महत्वपूर्ण भाग था। The fourthly, चौथी बात, resurrection of Jesus was foretold by the prophets. It was the fulfillment of prophecies. यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये भविष्य वक्ताओं के द्वारा पहले से ही बताया गया था, इसलिए वो जो वादा था, जो वाचा था, वो पूरा किया गया। Crucifixion, just as the incarnation and of the Son of God, और जो क्रूस पर मृत्यु पाना यीशु मसीह का उनके देहधारी रूप में, and the Son of God came back to life. God raised him back into life. और परमेश्वर ने उन्हें फिर से मृत्यु में से जीवित किया। All these three great, even great miracles, और ये जो तीनों बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं, none of these three were afterthought, a second plan of God. और ये तीनों भी परमेश्वर का दूसरा योजना नहीं था। It was from the eternity God had planned for the resurrection. और ये अनंत काल से था कि परमेश्वर ने उद्धार की ये योजना बनाई So थी। all these three important events were according to the eternal plan of God. और ये तीनों योजना वो परमेश्वर ने अनंत काल से ही बनाकर रखी थी। And Jesus himself refers to two of his disciples. और यीशु मसीह खुद अपने दो शिष्यों के बारे में, And they were not the full-time disciples. I call them part-time disciples if we could, because they were not among the 12 apostles. वो उन 12 शिष्यों में से नहीं थे, वो उनके अलावा उनके ये दो शिष्य थे। Yet scripture says that they were disciples. लेकिन फिर भी जो वचन ये बताता है कि वो दोनों भी यीशु मसीह के शिष्य थे। And early morning on the first day of resurrection, और सुबह के समय तड़के जो पहला दिन जो पुनरुत्थान का था, they started going back to their hometown, Emmaus. और वो एमॉस में अपने घर को जा रहे थे। We understand they had come to Jerusalem to celebrate the Passover and the Sabbath. और हम ये समझते हैं कि वो यरूशलेम में आए थे कि वो फसह के पर्वत को मना सके। So they were aware of all the events that took place in those days. तो उन्हें ये बात की जानकारी थी जो भी घटनाएं उन दिनों में घटी थी। And they started going back to their home. और वो फिर से अपने घर को जाने लगे। And as they were walking, और जैसे वो चल रहे थे, they were very discouraged. और वो बहुत हताश थे। And they were discussing about all these things that had happened. और वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे जो भी घटना वहाँ पर घटी थी And उसके विषय। Jesus saw them. They were so discouraged. They were in despondency. They expressed their helplessness. और यीशु मसीह ने उन्हें देखा कि वो बहुत हताश है और वो बहुत निराश हो चुके थे। And Jesus joined them in the journey and started discussing with them. और यीशु मसीह उनके साथ आए और उनके साथ वो उस विषय में बातचीत करने लगे। And they were so surprised that he was a stranger to them. They did not recognize him. और वो बहुत ही चकित हुए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। And they asked, "Are you the only one who is not aware of all these things that has happened these days?" और उन्होंने यीशु मसीह से ऐसे पूछा कि क्या तुम वो एक ही हो जिसको ये जो घटनाएं इन दोनों दिनों में घटी है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं? As a matter of fact, he was the only one who understood everything that had happened. लेकिन जबकि वहाँ पर बात ये थी
कि यीशु मसीह वो एक ही व्यक्ति थे जिन्हें सारी बातें पता थी जो उन दिनों में घटी थी। And we read that Jesus rebuked them for their unbelief. They did not believe what was foretold in the scripture. और वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने डांट फटकार को बताया क्योंकि उन्होंने वचन पर विश्वास नहीं किया था। And so it was expected all Jewish people to know these events should take place. The virgin birth of the Messiah and the crucifixion of Messiah and resurrection of Messiah, everything was foretold through the scripture. क्योंकि यहूदियों को, हर एक यहूदियों को ये बात जाननी अवश्य थी क्योंकि वो वचन में बताया गया था कि यीशु मसीह जो मसीहा है उनका जो देहधारी रूप में आना, उनका क्रूस पर मृत्यु पाना और फिर से जीवित होना। And he did not just encourage them to believe or encourage them to read the word of God. और उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह ने उन्हें सिर्फ उत्तेजन नहीं दिया कि वो विश्वास करे और वचनों को पढ़े। He rebuked them for not knowing the scripture. लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें डांट कर फटकारा कि उन्हें वचन नहीं पता था। In other words, all the Jewish people, even his own disciples and followers, if they had studied the word of God, they had believed the word of God, they should have known that it had to happen. तो जो भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, चाहे वो यहूदी हो, उन्हें सभी को ये बात पता होनी चाहिए थी कि जो वचन में लिखा है कि उनका फिर से पुनरुत्थान में आना। Let us look into this certain passages in that is Luke chapter 24, 25 to 27. We will not read the whole passage, but Luke chapter 24, 25 to 27. और हम लूका का 24 अध्याय वचन 25 से 27 पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्य वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन बुद्धि, क्या अवश्य न था कि मसीह से दुख उठाए अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखित बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। So he opened their understanding through the scripture. और यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उनके विचारों को पूर्ण रीति से खोला। Because everything was written down and they had to read and believe. क्योंकि सारी बातें लिखी गई थी, उन्हें उसे पढ़ना था और विश्वास करना था। Of course, every Jew had to study the scripture. और सभी यहूदियों को वचन पढ़ना था। But they did not believe what they read. लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया जो वचन उन्होंने पढ़े थे। If they had believed what the word of God had already written and said about his resurrection, they would not have been surprised or they wouldn't have had a doubt. अगर उन्होंने जो बातें उन्होंने पढ़ी थी उस पर विश्वास किया होता और जब वो घटी तो उनके लिए वो अचंभव की बात नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले से उस बात को पढ़ा हुआ होता। And so Jesus opened the scripture and let them know that this has happened just as it was written. इसलिए यीशु मसीह ने उन वचनों को पढ़कर उन्हें समझाया कि जैसे लिखा था वैसे ही ये सारी घटनाएं घटी। A fifth salient point. और पांचवा प्रमुख बात, The resurrection of Jesus has given us assurance of our own resurrection. कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने हमें ये विश्वास करने दिया है हमारे खुद का जो पुनरुत्थान होगा। Because Jesus was resurrected in his body, क्योंकि यीशु मसीह अपने शरीर में उन्होंने पुनरुत्थान को we पाया, shall all be resurrected in our body. और हम सारे भी अपने शरीर में पुनरुत्थान पाएंगे। Not just in our spirit, not just in our soul. सिर्फ हमारे आत्मा और हमारे प्राण में ही नहीं। Jesus was resurrected in his own body. यीशु मसीह उनके खुद के शरीर में उन्होंने पुनरुत्थान को पाया। He invited Thomas to come and put his finger into his wounds and his the nail mark and wound on the side. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मेरे जो घाव है, जो खीला का जो निशान था, उसमें वो उंगली डालकर देखे। And you
touch, and now you believe. अब तुम मुझे स्पर्श करो और फिर विश्वास करो। So he resurrected in his body, in his own body. तो यीशु मसीह वो अपने खुद के शरीर में पुनरुत्थान को पाए। So we also shall be resurrected, not just in our spirit, not just in our soul, but our body, the same body would come back again. तो हम भी सिर्फ हमारे प्राण में या हमारे आत्मा में ही नहीं, लेकिन हमारे शरीर में भी हम पुनरुत्थान को पाएंगे। And 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 24. और हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 20 से 24। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी भारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। Now there are so many things in this verse, और बहुत passage, सारी चीज़ें हैं इस वचन में, but I'm calling your attention to one particular thing. और मैं आपका जो ध्यान है वो एक चीज़ पर लेकर आना Just as चाहता हूँ। Jesus died and he rose back in his own body, और जैसे यीशु मसीह मृत्यु पाए और फिर से अपने शरीर में वो जीवित we हुए, all shall be raised back into life and we will also be resurrected. और हम सारे फिर से जीवित होंगे हमारे पुनरुत्थान के शरीर में। So the resurrection of Jesus has given us assurance that we also will be resurrected at the end. इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने हमें ये विश्वास दिया है कि हम भी फिर से पुनरुत्थान पाएंगे। The sixthly, और छठी बात, resurrection is the end of our hope. और जो पुनरुत्थान है वो अंत है हमारी आशा का, A hope of what we believe, what it shall be at the end. और जो उम्मीद, जो आशा कि अंत में क्या होगा। And hope is something that has not taken place yet, but it is going to take place in future. और उम्मीद या आशा वो चीज़ है कि जो घटना भविष्य में घटने वाली है, We have not seen, we don't see it and don't touch it. और हमने उसे देखा नहीं है और हमने उसे छुआ नहीं है, It have to happen sometimes in future, और वो होने वाला है कुछ समय में भविष्य में। but it is the faith that makes it very real to us. लेकिन ये विश्वास है जो हमें वो बहुत वास्तविक बनाता है। So resurrection is the end of our hope. तो जो पुनरुत्थान है वो हमारी आशा या उम्मीद का अंत है, What is going to happen at the end? और जो अंत में होने वाला है, Now we know it will happen और हम जानते हैं कि वो होगा because of resurrection of Lord Jesus Christ. क्योंकि जो पुनरुत्थान यीशु मसीह ने पाया। And so we know it will happen and the resurrection is the end of our hope. और हम जानते हैं कि ये होगा, और पुनरुत्थान वो अंत है हमारी आशा का। Our hope is that we shall be transformed into the image of his son Jesus Christ. और हमारा उम्मीद जो है कि हम अंत में जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह होंगे। What is the end goal of our salvation? तो हमारा अंत का जो लक्ष्य क्या है, जो उद्धार का, What is the ultimate purpose of God sending his son Jesus Christ? He got incarnated and he was crucified and raised him back into life. What was the end goal of all what God was doing there? जो यीशु मसीह देहधारी रूप में आए, फिर वो क्रूस पर मृत्यु पाए और वो फिर से पुनरुत्थान पाए, तो इसका अंत लक्ष्य क्या था? Oh, no, we know that because of that our sins are forgiven. और हम ये बात जानते हैं कि वो घटना घटी इसके लिए हमारे पाप क्षमा हुए, And God has accepted us into his family as his own sons and daughters. और परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में शामिल किया उनके बेटे और बेटी होने के अधिकार से। Is that the end goal of our salvation? क्या ये अंत लक्ष्य है हमारे उद्धार का?
I present to you और मैं आपके सामने ये प्रस्तुत the करता हूँ end goal of our salvation is not even becoming sons and daughters of the Most High God. जो हमारा अंत का लक्ष्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने, But something greater, higher, and great, more precious thing God has kept waiting for us. लेकिन उससे भी अधिक और अनमोल चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। Now, read 1 John chapter 3 verse 1 to 3. और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 1 से 3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। So John writes the believers of that time. और यूहन्ना उस समय के विश्वासियों को लिखता है And now we know we are children of God. कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं, But we do not know what we shall be more at the end. लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अंत में क्या होंगे। And therefore, I submit to you, और इसलिए मैं तुम्हें ये बताता हूँ, it is not the end goal of God's purpose in saving us to make sons and daughters to Himself. और ये अंत का लक्ष्य नहीं है कि परमेश्वर हमें अपने बेटे बेटियां बनाए, There is something more to that. और भी कुछ है। He wants all of us to be transformed into the image of His only begotten Son. कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी यीशु मसीह के रूप में परिवर्तन हो। How it would happen? ये कैसे होगा? It would happen on the day of resurrection. और ये होगा जिस दिन पुनरुत्थान होगा। And the Lord has already been resurrected. और यीशु मसीह वो पुनरुत्थान पा चुके He is the हैं living Savior. और वो जीवित उद्धार करता है। And the end time He will come back and He will call back even our dead body. He will come back into life. और जब अंत का समय आएगा वो फिर से आएंगे और हमारा जो मृत्यु पाया हुआ शरीर है उसे पुकारेंगे। All the dead believers and the living believers will be caught up in the air with our body. और जो जीवित विश्वासी है और जो मृत्यु पा चुके विश्वासी है वो फिर से उठेंगे अपने शरीर में। John writes that we shall be transformed into His image because we shall see Him as He is. और यूहन्ना यहाँ पर लिखते हैं कि हम उसके रूप में हो जाएंगे जैसा वो है। And when that would happen? और ये कब होगा? When we are all resurrected. जब हम सभी पुनरुत्थान पा चुके And the होंगे। resurrection of Jesus has made it possible for all us to be resurrected. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने ये संभव किया है हमारे लिए कि हम सभी भी पुनरुत्थान पा सकेंगे। And so the resurrection of Jesus has made it possible for all of us to be transformed into the image of Jesus. जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है उसने ये संभव किया है कि हम सब यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थान पा सकेंगे। And therefore resurrection is the end of our hope. इसलिए जो पुनरुत्थान है वो अंत है हमारे आशा और We उम्मीद keep का। on hoping until that day. और हम उम्मीद रखते हैं उस दिन तक। When we are resurrected, our hope ends because we shall see Him as He is. और जब हम पुनरुत्थान पाएंगे वहाँ पर हमारी उम्मीद खत्म होगी क्योंकि हम यीशु मसीह को देखेंगे And we जैसा shall be वो है transformed into His own image. और हम उसी के रूप में परिवर्तन पाएंगे। It has been made possible because of Christ's own resurrection. और ये संभव है क्योंकि यीशु मसीह का खुद का पुनरुत्थान। The seventhly and the last point, और सातवीं बात और आखिरी, you know this, it has been our tradition और ये हमारा शालोम। ट्रेडिशन है शालोम में on Easter Day I always gave a short sermon. कि जो पुनरुत्थान का दिन है उस दिन मैंने छोटा संदेश दिया है And I have always given. और मैंने ऐसा हमेशा किया है And so I want to keep that tradition on. और मैं अभी भी उस परंपरा को जारी And रखना this is चाहता the हूँ। final and seventh point. और ये आखिरी और सातवां प्रमुख बात है। The Lord of the cross has become the Lord of power and glory. जो क्रूस का परमेश्वर था वो अब सामर्थ और दया का परमेश्वर बना है। All the glory and the power He had
kept aside when he was incarnated, और जो भी सामर्थ और अनुग्रह उन्होंने रख दिया था जब वो पुनरुत्थान पाए, it is through his resurrection he has received it back. जब वो देहधारी हुए थे तब उन्होंने सामर्थ और अनुग्रह को रख दिया था, और फिर जब वो पुनरुत्थान पाए तो उन्हें वो फिर से मिला। So the Lord is Lord of power and glory. तो जो परमेश्वर है वो सामर्थ और अनुग्रह के परमेश्वर है। We do not worship Christ on the cross. और हम क्रूस पर यीशु मसीह की स्तुति आराधना नहीं करते, And we don't want to keep a crucifixion picture in that home and put a garland and worship that. और हम अपने घर में उस क्रूस का चित्र लगाकर उस पे हार चढ़ाकर उसकी आराधना नहीं करते, Because Jesus is no longer on the cross. क्योंकि यीशु मसीह अब उस क्रूस पर नहीं है। If we are looking at Christ on the cross, we are looking for the living among the dead. क्योंकि अगर हम उस क्रूस पे यीशु मसीह को देख रहे हैं तो हम मृत्यु में जीवितों को ढूंढ रहे हैं। We do not worship the dead Savior as many others do. और हम उस मरे हुए उद्धारकर्ता की आराधना नहीं करते जैसे बाकी लोग For करते he हैं। died and he rose again, he lives forevermore. और वो मृत्यु पाए, वो फिर से जीवन पाए और वो अब जीवित है। Those who experience the risen Christ और जो कोई भी अनुभव पाता है जीवित परमेश्वर का, also should experience the power and the glory of risen Lord in our life. और उस व्यक्ति को यीशु मसीह जो पुनरुत्थान पाया हुआ है अपनी महिमा और सामर्थ के साथ को भी अनुभव करना है। Read Philippians chapter 3 verse 10 and 11. और हम फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 10 और 11 पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। It's not that Paul did not experience the power of resurrection. और ऐसा नहीं था कि पौलुस ने यहाँ पर जो पुनरुत्थान का सामर्थ को नहीं प्राप्त किया He था, had an insatiable hunger, never quenchable hunger to have more and more of that power. और लेकिन उसके पास कभी न खत्म होने वाला वो भूख था कि उसे वो सामर्थ और मिलते जाए। And so he wanted to experience more the power of resurrected Lord. तो वो उस सामर्थ को और अनुभव करना चाहता था जो पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का था। When the resurrected Christ lives in your heart, और जब पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह जो आपके दिल में रहते हैं तो you should have the power, the energy, enthusiasm, exuberance and the joy of the Lord in your life. तो आपके जीवन में वो आनंद, वो सामर्थ को दिखाई देना चाहिए। I'll tell you a story. It is not a just story, it happened. और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है लेकिन ये घटना घटी हुई है। Many of you use our daily bread for devotion. और कई लोग आप में से जो डेली ब्रेड जो दिन प्रतिदिन की रोटी That उसे is a उपयोग printed करते book. हैं, वो एक किताब है छपी हुई। And I use my iPad. और मैं मेरे आईपैड को यूज़ करता हूँ। And through iPad it is it's a little different than the printed book. लेकिन जो आईपैड में वो थोड़ा सा अलग होता है जो किताब छपी है उसके बराबर। And so on 7th of March, और 7 मार्च को in my devotion on iPad, I saw this, it was written. और जो वो मेरा भक्ति का समय था तो मैंने अपने आईपैड पे देखा कि लिखा हुआ था। There was a story about America's Got Talent. और वहाँ पर कहानी था कि अमेरिका गॉट टैलेंट। And that America's Got Talent, it is an event there. और वहाँ पे ये एक शो है। Sometimes I had seen in television. और मैंने टीवी पे भी ये कई बार देखा है। And that was a very acclaimed program. और ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। All great singers and dancers, they want to compete there to bring name for themselves. और बड़े बड़े गायक या जो नृत्य करते हैं वहाँ पर उनकी प्रतियोगिता होती It है। is highly competitive program. और वो बहुत ऊंचे स्तर पर वहाँ पे प्रतियोगिता होती है। And the main or senior judge often makes a very harsh
statement. और जो वहाँ पे जज रहते हैं, जो न्याय करते हैं कि प्रोग्राम कैसे था, वो वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर वो बातों को बताते हैं। And I have noticed many times he embarrasses those who compete there. और जो वहाँ पर प्रतियोगी खड़ा होता है, कई बार वो उसे काफ़ी कड़वी बातें कहते हैं। There are other judges, they are more relaxed, they are more considerate. और वहाँ पे और भी जो न्याय करने वाले होते हैं, जो जज होते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रेम से उनका जजिंग But करते he is हैं, always very harsh. लेकिन वो बहुत ही कठोर शब्दों का उपयोग करता है। A 5-year-old girl came on the stage. और 5 साल की लड़की वो स्टेज पर आई She performed, she danced and she sang और वहाँ पर उसने नृत्य किया, गाना गाया with a great joy, enthusiasm, exuberance. She was bubbling with the joy. और बहुत ही बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उसने वो किया। And the judge और वहाँ पर जो जज था compared that 5-year-old girl to Shirley Temple, who had lived many decades before. और जो वहाँ का मुख्य जज था, उसने उस लड़की का तुलना शर्ली टेम्पल के साथ किया, जो कई साल पहले थी Who was known as a great singer and dancer. और उसे बहुत बड़ी गायिका और नृत्य करने वाली ऐसे जाना Listen जाता carefully. था। आप ध्यान से सुने। This is what that judge said. और ये उस जज ने कहा, I think Shirley Temple is living somewhere inside you. और उस जज ने ऐसे कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि शर्ली टेम्पल वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहती है, Because this 5-year-old girl was so good, so joyous, and so sang and danced with the exuberance. और ये जो 5 साल की लड़की थी, उसने इतना उत्साह और आनंद दिखाया And he compared her to that great performer in the past decades. और उस जज ने उस लड़की का तुलना उस बड़े आर्टिस्ट के साथ किया। That should have been considered as the greatest acknowledgement to that girl. और ये बहुत ही बड़ा बात था उस लड़की के लिए। Now you listen carefully how the girl responded to that. और आप ये ध्यान से सुने कि किस तरीके से उस लड़की ने इस पर जवाब दिया। Without any hesitation, और बिना घबराए she said, और उसने कहा not Shirley Temple, कि शर्ली टेम्पल नहीं, Jesus. यीशु। Not Shirley Temple, Jesus. शर्ली टेम्पल नहीं, लेकिन यीशु। And even the 5-year-old girl, she had the joy of Jesus living in her heart. और ये 5 साल की लड़की के अंदर वो आनंद था कि यीशु मसीह उसके अंदर रहते हैं। Her energy, enthusiasm, exuberance and joy came from the Lord who was residing in her heart. वो आनंद, वो उत्साह उसके अंदर जो यीशु मसीह रहते हैं वहाँ से आया। You and I, we have the same Lord in us. आपके पास और मेरे पास भी वही परमेश्वर He's है, the same resurrected Lord, the living Savior. और वो वही परमेश्वर है जो पुनरुत्थान पाए और जीवित है। Now with all the glory and the power and the joy, and He lives in our hearts. और सारी महिमा, सामर्थ और आनंद के साथ वो हमारे भीतर रहते हैं। Do you have that power in you? लेकिन क्या आप में वो सामर्थ है? Do you have that joy of resurrection in your life? क्या आपके अंदर वो पुनरुत्थान का आनंद है? Do you have that energy and enthusiasm even while worshiping? Do you have that joy, energy and enthusiasm? क्या स्तुति आराधना के समय भी आपके अंदर वो आनंद, वो उत्साह है? Today nuclear bomb is considered to have enormous power. और आज न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सामर्थ उसमें है। And one bomb can destroy a whole city and reduce this to ash. और एक बॉम्ब वो शहर को तहस नहस कर सकता है। Just as USA had done in Japan. और जैसे जो USA है उसने किया जापान में। And twin city Nagasaki, it was just destroyed and became ash. जो वहाँ पे शहर है नागासाकी, वो पूर्ण रीति से तहस नहस हो चुका था। And that was the end of Second World War. और वो अंत था दूसरा जो घमासान जो युद्ध था उसका। We know that today
the atom bombs, they make a atom bomb 10 times more powerful than that. और आज हम जानते हैं ये जो एटम बॉम्ब्स बनते हैं वो 10 गुना ज़्यादा सामर्थ्य से होते It is हैं enormous power of death and destruction. और उसके अंदर वो सामर्थ्य रहता है कि वो मृत्यु को लेकर आए। But power of resurrection is much greater than that power. लेकिन जो सामर्थ्य है पुनरुत्थान का वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली Because है, the power of resurrection gives life. क्योंकि जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है वो जीवन देता And है। therefore there is no greater power and energy more than the power of resurrection that is living in our hearts. इसलिए जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है उससे बढ़कर कोई और सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वो हमारे भीतर रहता है That comes from the Lord of resurrection. और वो हमें परमेश्वर जो पुनरुत्थान पा चुके हैं वहाँ से आता है। Read John chapter 11 verses 25-26. और हम यूहन्ना का 11वां अध्याय वचन 25 से और 26 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है? Jesus said to her, I am the resurrection and life. He who believes in me will live even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? That was a question Jesus asked to Mary. और ये प्रश्न था कि यीशु मसीह ने मरियम से पूछा, And I'm asking that question to you. और मैं ये प्रश्न आपसे पूछता Do you हूँ believe that? कि क्या आप विश्वास करते हैं? And do you have that power of resurrection in your life? क्या आपके भीतर वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है? Let us stand up, and the worship group would lead us into worship. और हम खड़े हो जाएंगे और स्तुति आराधना का दल हमें आराधना में चलाएगा, Then let us pray. और फिर हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह हमने वचन सुना है, क्यों ना अपने स्थान में हम खड़े हो जाए।
पाया, मृत्यु पर विजय पाया, हालेलुया विजय पाया, रोगी पर विजय पाया, हालेलुया विजय पाया, यीशु राज करता है। Will you stand up, please? कृपया करके आप खड़े हो जाएं। Yes, our Lord Jesus is a Lord of life. और हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देने वाले परमेश्वर है He is the Lord of resurrection. और वो पुनरुत्थान के परमेश्वर है He is a resurrected Lord. और वो पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर है। As we celebrate this day, remembering that, और हम इस दिन को मनाते हैं उस घटना को याद करते let हुए, us also experience that energy, the joy and exuberance within our heart. तो क्यों ना हम उस आनंद को उस उत्साह को भी महसूस करें। Let the power of resurrected Lord come into our lives now. और वो पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में इस समय आए। Lord Jesus, we give thanks to you. और प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। You not only got incarnated and lived on earth like one of us, आप सिर्फ देहधारी होकर इस संसार में आकर हम जैसे बनकर जीवन जिए, and you willingly went on the cross and gave your life, and you suffered for us, paid the penalty of all our sins. और आप अपनी मर्जी से उस क्रूस पर चढ़ाए गए और हमारे पापों के लिए आपने बहुत दुख उठाया और हमारा दंड को चुकाया। As you had told that I am the resurrection, he proved it by coming out of the tomb, got resurrected. और आपने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ और आपने वो सबूत भी दिया आपके पुनरुत्थान के द्वारा, And remain to be a living savior forever. और आप हमारे लिए अनंत काल तक जीवित रहे। And you, the resurrected Lord, has come into our lives. और आप जो पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर है हमारे जीवन में आए। And many of us, it is the fact that we have lost the joy in our life. और ये सच बात है कि हम में से कई लोगों ने वो आनंद को खो दिया है पुनरुत्थान का, And we have lost the energy of resurrection in our own life. और उस उत्साह को भी हमने खो दिया है। And right now we pray, O Lord of resurrection, release a power of resurrection into life of everyone. और इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर आपका सामर्थ वो हम लोगों में उतरे। And so we can also say that it is nothing else, it is Jesus in my heart. तो हम भी ये कह सके कि कुछ और नहीं लेकिन यीशु मेरे हृदय में। As we worship, as we glorify you, जैसे हम आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, as we spread the news of resurrection, और जैसे हम पुनरुत्थान की जो ये खुश खबर है वो औरों को बताते हैं, enable us to do it with the confidence, joy and great energy. और आप हमें मदद करें कि इसे हम आनंद के साथ उत्साह के साथ कर सके। Today we don't have a fear of death, आज हमारे पास मृत्यु का भय नहीं है, and we are not confused of a future either. और हम हमारे भविष्य को लेकर भी चिंतित नहीं है। We are looking forward to the time when we would be transformed into your own image. लेकिन हम उस घड़ी के लिए रुके हैं जब हम आपके रूप में परिवर्तन But पाएंगे। you have begun the process in our own life. लेकिन आपने हमारे जीवन में उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया You है, have brought resurrection into our life because you, the Lord of resurrection, is living in our hearts. और आपने वो पुनरुत्थान का सामर्थ को हमारे जीवन में लाया है क्योंकि आप हमारे भीतर रहते हैं। Enable us to share this joy, that exuberance, that energy with one another. हमें मदद करे कि हम वो आनंद, वो उत्साह हम वो दूसरों के साथ बांट सके। As we celebrate this day, और जैसे हम इस दिन को मनाते हैं, help us never to forget this day. और हमें मदद करे कि हम इस दिन को कभी ना भूलें, And our people would celebrate this day with great joy. और हमारे लोग इस दिन को बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ And मनाएं। greet one another, saying that
the Lord is risen. और एक दूसरे को मिलते हुए ऐसा कहे कि परमेश्वर वो जीवित है। You would do this for us और ये आपने हमारे लिए किया because you're living, resurrected Lord living in our hearts. क्योंकि आप वो जीवित परमेश्वर जो पुनरुत्थान पाए हुए हैं वो हमारे भीतर रहते हैं। You take glory for yourself through our lives. और आप अपने लिए हमारे जीवन से महिमा को लेते हैं So we also would be able to say that it is Jesus. ताकि हम भी ये कह सके कि वो यीशु है। In your precious and glorious name, our Lord and Savior, resurrected Lord and Savior Jesus Christ, we pray. और हमारे अनुग्रहकारी और महिमा सहित परमेश्वर जो पुनरुत्थान पाए हुए हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen and हैं। amen. आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Have a great joy and celebrate the day. Greet one another, saying, "The Lord is risen." और आप आनंद मनाएं, इस दिन को उत्साह के साथ मनाएं और एक दूसरे से कहे कि यीशु मसीह वो जीवित है Say, "He is living in my heart." और कहे कि वो मेरे हृदय में रहता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।